Hello, hello, my dear friends. Today I am shooting my another video. So in this video we will be discussing about the strategy plan to succeed in the NEET MDS and what should you do from the starting of your internship, or either you are a dropper or you are doing your internship. You should follow these steps to succeed earlier. Okay. So first of all, I have made one diary in which I have mentioned all the dental as well as the medical subjects. First of all, there are total 13 of dental subjects and 8 of medical subjects. Among the 13 of dental subjects, first of all, there is cons, then there is endo, pedo, ortho, perio, PhD like community dentistry, OP, DM, oral surgery, prostho, radio, DA, and DH. Amongst all these subjects, all of them are important, but main focus or main importance should be given like to OP. Like it is difficult to memorize the things like which syndrome, which characteristic feature. You should able to recognize the images as well in the case of OP. Okay. In the case of PhD, like you have to know well about what is the risk difference, what is the risk ratio, what is odds ratio. And in during our UG days, all of us don't study PhD very well. I think all of you will correlate with me. Even I have not studied PhD for the whole year. At the last, during my final year paper, I was crying like what to do now. But somehow I managed to do the PhD and I scored 140 marks out of 200 in my PhD exam. So this is totally different what we have done in our UG days. So PhD is the utmost important subject. There are very different types of numericals which we have not studied earlier. Okay, you should know very well about the case control study, the cohort study. Okay, the biostat part is very important. From that we can get about the numerical. Okay, like what is Whiskers box. Okay, stem and leaf plot that we have not studied earlier. If you want any kind of these information regarding the PhD, I will help you all. You can send me a text on the YouTube comment box. I will help to guide you about the PhD numericals and from where you have to study the PhD. I myself also find the PhD very difficult during my internship when I used to study it. So please give it the importance that we have not given the subject. Okay. Next, ortho is very important. In ortho, we have to remember about the Downs analysis, the Steiner analysis, the Tweed analysis, and there are various different types of conditions that we have to remember. Pedo is somehow easier as compared to ortho, but please remember whenever we will study ortho, along with that, please study pedo as both of these subjects correlate well with each other. Similarly, goes for cons and endo. In cons and endo, you have to remember the classifications very well. Like there are different type of files, like shaping file and finishing file, their sizes, their colors. Okay, like there are different types of classification. You can jot it down on a piece of paper, the classification for the cons and endo, and memorize it very well by repeating it again and again. This will help you to regain the knowledge and you will not forget it for the last days of the preparation. Okay. Similarly goes for perio. In the perio, we have to learn about the microorganisms like which causes the red complex, the orange complex. This topic is very important. Okay, we have to learn about the MMPs, which causes the MMP1, MMP2, or MMP7. That we have to remember very carefully. There are also many other things. Okay, first of all, you should remember that classification should be on a tip. Okay, sometimes what happens that question directly come from classification and we are not able to remember the classification very well. So it's like that we will lose our marks for the simple question. That's not very well done. Okay, so please do the classifications very importantly. Memorize it again and again. Jot it down on a piece of paper. That will help you to regain it. Okay, and
Every Sunday, please try to recall the classifications again and again. That will help you to gain the knowledge. Whenever you are doing these subjects, first of all, I will attach these photos that I have mentioned on my notebook. I think it's not clear here. That you have to distribute your time for different subjects. Along with that, you have to do your pulse very carefully. Like I have mentioned here, in the case of June, today it is 1st June. From 1st, 2nd and 3rd, do your cons very well. Like notes. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द नोट्स अगर आपने रीड कर लिए एक बारी तो आपकी नॉलेज में डेप्थ बढ़ जाएगी, जिसके कारण आप पल्स को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ो। जब आपने नोट्स पढ़ लिए फिर आप पल्स पे जाओ। अब आपको पल्स में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप मार्क कर लो, ठीक है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या कर सकते हो, अभी पल्स में हम अगर मार्किंग शुरू कर देंगे पेन से, फर्स्ट ऑफ ऑल पेन को यूज़ मत करो, पेंसिल से यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि लास्ट में अगर आपको सॉल्व करना भी होगा तो आप कर सकते हो। एक पीस ऑफ पेपर पे आप सॉल्व करना शुरू करो, उसमें से जो क्वेश्चन आपको गलत लगता है उसको आप अपनी बुक में मार्क कर लो, ताकि आप उसको रिमेंबर कर सको, आपको मेमोराइज अच्छे से हो पाए कि आपने क्या गलती करी है। दूसरा, जो उसके हमें पीछे डिस्क्रिप्शन दी होती है क्वेश्चंस की, ये नहीं है कि उसको छोड़ दो, उसको भी पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है। उसमें से भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, जहाँ पे भी आपने अपने नोट्स बनाए थे, या तो आप उस पर लिख लो या तो उसको हाईलाइट कर लो। पूरी बुक को हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको भी आपने अच्छे से हाईलाइट कर लो या फिर अपनी नोटबुक पे लिख लो, ताकि इन केस आप दोबारा उसको पढ़ने भूल जाओ डिस्क्रिप्शन को फ्रॉम द बैक ऑफ द पल्स, आप नोट्स में ही उसको पढ़ लोगे। मेरे ख्याल से नोट्स में लिखना इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू पल्स के ऊपर जाना, ओके। हाँ, तो आप 1st, 2nd, 3rd को कॉन्स पढ़ो, नोट्स भी उसके अच्छे से करो, और साथ में उसकी अगर आप पल्स कर सकते हो तो पल्स भी करो। फिर आप क्या करो, 4 और 5 को आप पकड़ो एंडो, ठीक। फिर 6th को आपने क्या करना है, जो आपने कॉन्स और एंडो करे थे उनकी पल्स के साथ उनको दोबारा रिवाइज़ करो, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, मैं इसकी फ़ोटो लगा दूँगी साथ में, ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं हमारे मेडिकल सब्जेक्ट्स में, उसमें हमारे पास टोटल 8 सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक जनरल सर्जरी, जनरल पैथोलॉजी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जनरल सर्जरी, जनरल पैथोलॉजी, बायोकेम, एनाटमी, फिजियो, जनरल मेडिसिन, फार्मा एंड माइक्रो। अब क्या हुआ है, आजकल ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया है। आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन माइक्रो से भी आने लग चुके हैं फ्रॉम द मेडिकल सब्जेक्ट। माइक्रो आप अच्छे से करो, स्टार्टिंग से करो, क्योंकि माइक्रो क्या है, हम बैक्टीरिया के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर में पढ़ी होती है माइक्रो, वो भी इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ी होती, और भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। ह्यूमन टेंडेंसी है भूलना, जितना रिवाइज़ करेंगे उतना हमें याद रहेगा, ठीक है। फार्मा के भी आजकल बहुत क्वेश्चंस आने लग गए, तो आप फार्मा ये नहीं है कि आप महीने में एक बारी पढ़ लोगे या महीने में 2 बारी पढ़ लोगे। अगर आप फार्मा के डेली एक क्लासिफिकेशन करोगे, फिर जाके आपको कहीं फार्मा याद रहेगी, ठीक है। तो फार्मा को तो डेली करना ही पड़ेगा। अगर आपने मान के चलो आज आपने क्लासिफिकेशन करी है डायबिटीज़ की, ठीक है, स्पर्श ग्रुप्ता उठाओ, उसमें से उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट डे आपने क्लासिफिकेशन को दोबारा रिवाइज़ करना है, और जो क्वेश्चंस आपको लगा था कि आपने नहीं पढ़े क्लासिफिकेशन के थ्रू, वो आप उसको वहाँ पे नोट कर लो। ये आपको करेगा बहुत ज़्यादा हेल्प। ये चीज़ अगर आप स्टार्टिंग से करोगे ना, आज से शुरू कर दोगे, तो नो डाउट आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। बट अगर आप बाद में करोगे, जो गलती मैंने भी करी थी, मुझे नहीं पता था पहले कि कैसे करना है, डेली करना है, क्या करना है, तो फिर मेरे लिए भी वो चीज़ डिफ़िकल्ट हो गई थी बाद में। तो मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर आप ये चीज़ें अभी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बायोकेम से भी क्वेश्चन आते हैं। बायोकेम में आपको एंजाइम्स के नाम अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। कौन से स्टेप पे क्या आता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होती है, ठीक है। फिर आपने लिपिड स्टोरेज डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, वो इस बारी के नीट में भी आया हुआ था, ठीक है। फिर आपने और क्या पढ़ सकते हो आप उसके अंदर, लाइक वो वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कौन से जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, कीटोन बॉडीज़ हो गया, उसके अंदर कौन से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है।
ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, एचएमपी पाथवे, कौन सा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है, कौन सा स्टेप साइटोप्लाज्म में अकर होता है। ये इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो प्लीज़ इसको भी अच्छे से आप करो। बायोकेम, फार्मा और माइक्रो आजकल के हॉट टॉपिक्स हैं, इनमें से आते हैं क्वेश्चन। अगर आपने नहीं करे तो आप नहीं कर पाओगे, बट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जनरल सर्जरी अगेन वो बहुत ज़्यादा इजी है, बट ये नहीं कहती मैं कि आप छोड़ दो, आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली गोज़ विद आर जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में लाइक देर आर इन्फ्रैक्ट्स, वाइट कलर का इन्फ्रैक्ट कौन सा है, पेल कलर का कौन सा है, रेड कलर का कौन सा है, बोथ वाइट एंड रेड कौन से है। इनके एग्जाम्पल्स याद करना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी हम गलत कर देते हैं, लाइक आर्टीरियल ऑक्लूजन के क्या फ़ीचर्स है, वीनस ऑक्लूजन के क्या फ़ीचर्स है, ठीक है। और इसके अंदर आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स लाइक ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, उनके एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। तो आपको इसके एग्जांपल भी याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि पेपर में कब क्या आ जाए। इस बार ही नहीं आया, पहले आया था, अब दोबारा आ जाए। सो वी डोंट नो, वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क। ओके, एनाटमी अगेन इज इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न अबाउट द एनाटमी और द टंग। उसके अंदर कौन सी हमारी इंट्रेंसिक मसल्स है, कौन सी एक्सटेंसिक मसल्स है, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन कहाँ से हुई है, ये सब आ जाता है हमारे एनाटमी के अंदर। तो एनाटमी ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एनाटमी अगर आप पल्स उठाओगे डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ आपको कि पहले अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ो, 3-4 दिन लगाओ नोट्स में। जब आपको लगता है कि आप नोट्स के साथ गो थ्रू अच्छे से हो गए हो, देन आप पल्स उठाओ। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं अगर आप अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपको साथ के साथ पल्स करनी पड़ेगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है। नहीं तो आप पहले अपने नोट्स को अच्छे से ग्रास्प करो। आपको लगता है अभी आपको रिवाइज़ नहीं हुआ 2 बारी में, आप 4 बारी करो, बट उसको अच्छे से करो। उसके बाद फिर आप आगे जाओ, नेक्स्ट पल्स उठाओ अपनी। जब आप अपने पल्स भी सॉल्व कर लेते हो, ये नहीं है कि फेंक दो बुक या फेंक दो नोट्स। जब पल्स भी हो जाती है तो नोट्स और पल्स को दोबारा उठाओ, 2 दिन लगा के उनको दोबारा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जितना रिवाइज़ करोगे उतना ही आपको हेल्प करेगा। अगर आप बोलते हो हाँ जी मेरे को जो अभी तो याद हो गया है, बट अगर आप यही चीज़ आप 5 दिन बाद या 2 दिन बाद भी उठाओगे ना, कुछ नहीं याद होगा। तो आप उठाओ, उसको पढ़ो, जितना रिवाइज़ करोगे उतना ही वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो अब हमें ये याद रखना है हमारे पास टोटल 21 सब्जेक्ट्स है, जो कि एक ईजी डील नहीं है, ठीक है। 21 सब्जेक्ट्स हमारे पास एक ईजी टास्क नहीं है, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब मैं जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं मैं उनके लिए भी यही बोलना चाहूँगी जो मैंने सीखा है। बच्चे क्या करते हैं इंटर्नशिप में, करते टाइम पास। हमने भी किया है, अब मुझे लगता है कि गलत किया था। तो मैं ये बताना चाहूँगी, ठीक है आपको घूमने जाना है संडे को या सैटरडे को, ये नहीं कि घूमते ही रहो उसके बाद पढ़ो ही मत। कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे भी होंगे जो खुद पढ़ रहे होंगे बट आपको नहीं करने देंगे। तो आपको अपना भी देखना है कि आप इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद क्या बाद में घर पे बैठना चाहते हो, कि आप इमीडिएटली अपना 1 साल बाद जब भी नीट का पेपर होता है आप गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। या गवर्नमेंट आपका जो भी है, आपको गवर्नमेंट चाहिए या फिर प्राइवेट चाहिए, तो आप उसके लिए भी नंबर आने चाहिए, बिना नंबरों के नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप आज से ही पढ़ना शुरू करोगे, जो भी बच्चे इंटर्नशिप में है या फिर जिन्होंने भी ड्रॉप करा है, तो बाद में जैसे ही अब हमारा भी एक पेपर आएगा एम्स का, नवंबर के अंदर आता है, तो ये जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है, मैं आपको अपने नोट्स इसमें शेयर करूँगी क्या स्ट्रैटेजी है। अगर आप उसको देखो और उसको एनालाइज़ करो, उसकी तरह ही अगर आप कोशिश करोगे करने की, तो आपका सितंबर तक एक बारी सिलेबस हो जाएगा ख़त्म विद रिविज़न, ठीक है। एक बारी हो जाएगा, सितंबर में आप एक और बारी रिवीजन कर सकते हो। उसके साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको करनी है। जैसे अभी एम्स का पेपर आएगा नवंबर के लिए, उसके लिए मैं आपको बोलूँगी लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर करके जाने हैं, फ्रॉम 2014 से लेकर टिल 2000, अभी 25 है, 25 मई तक करके जाना, बिना उसके मत जाना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए डेंटल ट्रिपलेट को फॉलो कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छी बुक है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। एक्सप्लेनेशंस पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो जाओ, कहीं आपको अच्छा लगता है, कोई एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है, आपने कहीं नहीं पढ़ी, उसको मार्क आउट कर लो या लिख लो कहीं पे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ फार्मा रोज़ करनी है। फार्मा अगर रोज़ नहीं करोगे तो नहीं याद रहेगी, क्लासिफिकेशन उसकी रोज़ करो। साथ ही मैं आपको अभी मैं प्रीवियस ईयर जो टॉपिक्स है, पास्ट पेपर्स है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कैसे करनी है।
ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी लिखी है इसके अकॉर्डिंग आपका 12th ऑफ सितंबर तक, फ्रॉम 1st जून टू 12th ऑफ सितंबर, इंक्लूडिंग बोथ मेडिकल और डेंटल सब्जेक्ट्स दोनों कवर हो जाएंगे विद गुड अमाउंट ऑफ रिविजन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे पढ़ोगे। ये नहीं कि फ़ोन, ये लो जी हमने फ़ोन उठाते रील उठाते उठाते पढ़ लिया, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बिना नहीं चलेगा। अपना अच्छे से बुक उठाओ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो कि नहीं भाई अभी मैं नहीं आ सकता, अगर आप पढ़ रहे हो। ये नहीं कि अपनी बुक्स बंद कर दी चलो चले बाहर, हमने भी किया है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप सुखी रहो बाद में, तो फिर ये सब छोड़ दो, ठीक है। कभी कभी चलता है, हम भी इंसान हैं, हमें भी मन करता है, कॉलेज से हम भी थक गए होते हैं पूरा हफ्ता जाके, तो आप ये कर सकते हो। प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करो, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जैसे आपका मन करे आप वैसे करो, बट ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर किसी को कोई भी जैसे क्लासिफिकेशन वगैरह अगर कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो, मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू ऑल, बाय बाय।